Yes, Vijay. So in our last period, we have just started this concept of economic planning. So let us quickly recall what have we done just now. Economic planning means that system in which a set of targets is fixed by the central planning authority, keeping in view the needs and priorities of the country as well as the available resources of the country. And all those targets are specified to be completed, to be achieved within a specified period of time. This is just a concise definition of this economic planning. Okay. Then I have told you about the time period, which you can see from the this your message also. So different 5-year plans were made. I am repeating only to recall. First plan from 1951 say 56, second plan 56 say 61, third plan 61 say 66. Then 3 annual plans were there from 1966 to 69. Then fourth plan was from 69 to 74. Then fifth plan 74 to 79. Then annual plan, and then from 80 to 85 sixth plan was there, and then lastly 85 to 90 seventh plan was there. ऐसा नहीं है कि उसके बाद plans नहीं हुए, 90 onwards भी plans are there, but still in this chapter we have to remain confined to up to the year 1990. That is why I am talking up to this seventh plan. उसके बाद वाले जो plans हैं, you can have a look at those plans, their time period, but there is no need to learn their duration. Okay, duration to be learned, that is only for first 7 plans. Rest you can read in that table, all the plans have been mentioned. Okay, and objectives of first 7 plans, जो main objective है each plan, that is to be learned. So main important from the point of view of board's question paper, first plan's objective always to be remembered, that is development of agriculture, and second plan's objective was development of industries in the country. Okay, up to this part we have just done in our previous period. Now I am coming to the next part. अब है goals of 5-year plans. अच्छा, अब आपने थोड़ा सा ध्यान करना है. As you can see from the board, I have written goals of planning. ठीक है. अब एक word मैं use कर रही हूँ plan, एक word I am using planning. अब होता क्या है कि जो planning है उसके जो goals हैं they are permanent goals. मतलब whether it is first plan या second plan or 10th plan, 7th plan, any plan is there. These objectives remain the same. These do not change because they are the forever demands of the economy. They are always to be achieved. हमेशा के लिए ही है ये, ठीक है, कोई भी प्लान हो. अब वो कौन से हैं? They are called long term objectives या long term goals. When we make use of the word planning, that means we are talking about long term goals, जो हमेशा ही for long period they are perspective goals, जिनको हमेशा ही achieve करना country की priority रहेगी. अब वो कौन से ऑब्जेक्टिव हैं which are always regarded as prior needs of the economy? They are first is growth, second is modernization, planning के जो goals हैं long term planning के, third one is self reliance, fourth is equity, last one is full employment. ठीक है, ये हमेशा के लिए है, परमानेंट है, इनके लिए we have to use the term goals of planning, or the same is called long term goals या long term planning goals. ठीक. On the other side, जो भी पहले हमने किया पीछे किया है, जो each plan के साथ में जो target लिखा हुआ है, they are the goals of a particular plan. As I am saying, first plan's goal was या objective, goal and objective target one and the same thing. तो objective of first plan या goal of first plan was development of agriculture. मतलब during those 5 years, planning commission had to pay attention to the development of primary or farming sector या agriculture sector, उसी से related काम करना. ठीक है, जबकि लंबे टाइम के लिए जरूरी नहीं है कि वो एग्रीकल्चर हमेशा के लिए, ऐसा कुछ नहीं. ठीक, जैसे मैं आपको if I give you one example, जैसे for example your long term goal is to clear your 12th class, एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं. तो your goal is clearing your this board class with very good marks, ये आपका long term objective है. अच्छा, now on day-to-day basis, now your classes are going on. Each subject teacher asks you to read 2-3 pages of the chapter which are covered in the class. कि बेटे आज आपने ये lesson पढ़ना है, आपका आज इस chapter का test होगा या आपको इस chapter की revision होगी. तो आप उस दिन वो जो teacher has given the work, आप you just revise in the evening, you just revise that. ठीक है, वो आपका उस पर्टिकुलर डे का ऑब्जेक्टिव है कि आज मैंने ये चैप्टर याद करना है, आज मैंने ये 2 पेजेस पढ़ने हैं या याद करने हैं. दैट इज योर पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट वेरी डे. तो जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव है, अब इसको कंट्री के ऊपर ले आओ, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव जो एक
पर्टिकुलर प्लान का है, दैट इज कॉल्ड गोल ऑफ प्लान या ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लान. फॉर दैट प्लान वर्ड इज यूज्ड. बट ऑन द अदर साइड, चाहे आप रोज हर एक सब्जेक्ट का आप काम कर रहे हो, बट करते करते आफ्टर फुलफिलिंग दोज टारगेट्स, आफ्टर अचीविंग दोज टारगेट्स, धीरे धीरे क्या होगा, डे बाय डे you will be covering your syllabus and ultimately you will be able to complete your 12th class. है ना, ऐसे ही होगा ना. तो आप सारे ये ऑब्जेक्टिव्स हैं थोड़े थोड़े करके भी अल्टीमेटली आपका मेन गोल वो फिक्स हो जाएगा, वो पूरा हो जाएगा पास करने का विद गुड मार्क्स. तो ऐसे ही लॉन्ग टर्म के जो गोल्स हैं दे आर कॉल्ड प्लानिंग के गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स. और ईच इंडिविजुअल प्लान का जो गोल है वो उस टाइम पीरियड की नीड के अकॉर्डिंग दैट कैन वेरी. ठीक है, किसी समय किसी चीज की जरूरत है, आपका आज अकाउंट्स का टेस्ट है तो आप अकाउंट्स का पढ़ते हो, कल को इकोनॉमिक्स का टेस्ट है तो आप उसका पढ़ते हो. जो टाइम की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक यू आर डूइंग योर वर्क. तो वो होते हैं प्लान के ऑब्जेक्टिव इमीडिएट. और जो है कि ओवरऑल आपने सारा ही पढ़ना है, वो हो गया आपका गोल ऑफ प्लान लंबे टाइम का. ठीक है, ये मेन थोड़ा डिफरेंस आपने याद रखना है. Now in our syllabus we have been given this long term objectives. इनके बारे में detailed study is there, so I am going to tackle them one by one. First goal is this growth. ये आपने names भी याद करनी है. Let us repeat. First, growth, modernization, self-reliance, yeah, it is also called self-sufficiency. Then next one is equity, and last is this full employment, right? So coming to the first one, growth. अब growth का क्या meaning होता है? सिंपल टर्म्स में इफ वी से ग्रोथ मीन्स बढ़ना, इंक्रीज करना. ठीक है, नाउ इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, अब यहाँ पे हमने कोई और चीज का तो नहीं ले रहे हैं, वी हैव टू टॉक इन टर्म्स ऑफ द इकोनॉमिक लैंग्वेज. तो यहाँ पर ग्रोथ का मतलब है देयर शुड बी इंक्रीज. किसमें इंक्रीज? इंक्रीज इन द कैपेसिटी ऑफ द कंट्री टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर. क्या प्रोड्यूस मोर एंड मोर? टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर गुड्स एंड सर्विसेज. I'm repeating, growth here means increase in the country's capacity to produce more amount of goods and services within the country. कि हम ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकें, ज़्यादा चीज़ें बना सकें. This is our, this will be known as growth. ठीक. अच्छा, अब इसके लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है हमें इस चीज को? in order to produce more, what do we need? We need more raw materials, we need more machinery, capital goods हमें चाहिए, मशीनरी चाहिए. in order to produce more means there should be large stock of productive capital in the country. productive capital का मतलब ज्यादा मशीनें होनी चाहिए. प्रोडक्टिव मीन्स जिससे ज्यादा बना सके. कैपिटल का यहाँ पर मतलब सिर्फ मनी नहीं होता है, कैपिटल में आ जाता है मनी के साथ साथ ही मशीनरी आ जाती है, इम्प्लीमेंट्स आ जाती हैं, टूल्स आ जाते हैं, जिनकी वो सारी चीजें आ जाती हैं जिनकी हेल्प से हमने प्रोडक्शन करनी है. तो मेनली उसमें मशीनें होती हैं. ठीक है, तो ग्रोथ का मीनिंग है टू इंक्रीज द productive capacity of the country, to increase the productive stock of productive capital in the country. एक तो ये है. सेकंड मीनिंग भी इसका हो सकता है to increase all the supporting services in the country which help in further production. I think पता नहीं आपकी क्लास में I have told in one of the classes कि sport services क्या होती हैं, which is called infrastructure. जैसे roads है, railways है, post and telegraph. हाँ, last lesson में we have done. बैंक्स है, बैंकिंग है, कम्युनिकेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है. ऑल दीज कम अंडर द हेड ऑफ स्पोर्ट सर्विसेज. कि इनके बिना प्रोडक्शन करना पॉसिबल नहीं हो पाता है या बड़ा डिफिकल्ट होता है. राइट, तो पहला मैंने बोला फर्स्टली आई हैव सेड इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ प्रोडक्टिव कैपिटल इन द कंट्री. सेकेंडली देयर शुड बी इंक्रीज इन द अवेलेबिलिटी ऑफ स्पोर्ट सर्विसेज या इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कंट्री. एंड थर्डली देयर शुड बी इंक्रीज इन द this efficiency of productive capital. efficiency का मतलब है कि मशीनें तो हैं बट वो मशीनें भी एडवांस्ड मशीनें होनी चाहिए. ये नहीं कि मशीन लगी हुई है 100 साल पुरानी मशीन है उससे बनती कोई एक चीज नहीं, चलाई जाओ. या जैसे आपको कि आजकल के टाइम में हम कहें कि अच्छा साइकिल से 50 किलोमीटर का रास्ता तय कर लो, पॉसिबल तो नहीं है ना. अगर हुआ है भी पॉसिबल तो इट विल टेक लॉन्ग पीरियड, सारा दिन वो सफर में ही निकल जाएगा. ऐसे इसका मतलब है कि जो मशीनें हैं देयर एफिशिएंसी शुड आल्सो बी मोर. तेज स्पीड से, फास्टर स्पीड से काम करने वाली मशीनरी होनी चाहिए. सो प्लीज सी, आई हैव सेड growth means there should be growth means increase in the productive capital of the country. Secondly, increase in the sport services or infrastructural services in the country including banks, transportation, all that. Then thirdly, there should be increase in the efficiency of that productive capital
मीन्स एफिशिएंसी ऑफ मशीनरी शुड ऑल्सो बी मोर एज मच एज पॉसिबल, तभी ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। अब किससे प्रोडक्शन कर सकते हैं? विद लेटेस्ट मशीनरी, विद एडवांस्ड मशीनरी, विद फास्ट मशीनरी वी कैन प्रोड्यूस। मीन्स ओवरऑल फिजिकली मोर गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड, and in order to produce more goods physically, whatever supporting services are required, whatever helping services are required, whatever is required, और simple जो भी चाहिए in order to produce more, वो सब चीजें भी ज्यादा और बढ़िया होनी चाहिए, efficient होनी चाहिए। एक तो ये मीनिंग है इसका। सेकंड है कि there should be growth includes, there should be consistent increase in the GDP of the country। ठीक है, अब नाउ जीडीपी मींस थोड़ा सा आपने पढ़ा हुआ है 10th क्लास में, जीडीपी का मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये तो हो गया फुल फॉर्म। अब मीनिंग क्या है? नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू इन डिटेल। एक दिन पहले मैंने बताया था, आई विल टेल लेटर। नाउ यू प्लीज पे अटेंशन वेरी केयरफुली बिकॉज दिस टर्म विल बी यूज्ड लेटर आल्सो इन मैक्रो इकोनॉमिक्स पार्ट। सो फॉर एग्जांपल, just to show you, I have this pencil in my hand, ठीक है, I have this duster in my hand and I have a water bottle in my hand, ठीक है, तीन चीजें फॉर एग्जांपल ले लें। अब मान लीजिए, मानना है, सच में नहीं होता है, ये जस्ट एग्जांपल के तौर पे आई एम टेलिंग। अब मान लो किसी कंट्री में एक साथ में ये तीन चीजें बनी, एक बनी पेंसिल, एक बनी वाटर बॉटल, एक बना डस्टर, ये तीन चीजें बनी। ठीक, तो हम क्या कहेंगे इकोनॉमिक्स में, इसको क्या बोलेंगे? वी विल से दैट देयर वाज प्रोडक्शन ऑफ 3 आइटम्स। ठीक, आइटम्स के सिर्फ नाम बता देंगे, बट उसका मतलब ये तो नहीं है कि देयर वाज प्रोडक्शन ऑफ ओनली 1 पेंसिल या 1 डस्टर या 1 बॉटल। बहुत सारी बॉटल्स बनी होंगी, बहुत सारी पेंसिलें बनी होंगी, बहुत सारे डस्टर बने होंगे। ठीक, तो अब उसको, अब इन तीनों चीजों की जो नेचर है, फिजिकल नेचर है, वो डिफरेंट है। पेंसिल कैनॉट बी कंपेयर्ड विद डस्टर, डस्टर कैनॉट बी कंपेयर्ड विद बॉटल। आपस में इनका कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है अगर इनके फिजिकल फीचर्स को ध्यान से देखें। मतलब फिजिकल का मतलब होता है मटेरियलिस्टिक चीजें। ठीक है, तो अब इसको फिर पता कैसे चले कि कंट्री के अंदर टोटल प्रोडक्शन कितनी हुई है? देन वी नीड टू कन्वर्ट दीज फिजिकल थिंग्स इनटू सम मॉनेटरी फॉर्म। रुपयों में, पैसों में इसको कन्वर्ट कर लें, कितनी वैल्यू के बराबर सामान बना है, वी नीड टू कन्वर्ट दैट। तभी हम कह पाएंगे कि कंट्री में 100 रुपीज के बराबर सामान की प्रोडक्शन हुई या कंट्री में 200 रुपीज के बराबर सामान की प्रोडक्शन हुई, कितना हुआ? वी नीड टू कन्वर्ट द वैल्यू ऑफ दीज फिजिकल प्रोडक्ट्स इनटू मॉनेटरी फॉर्म। ठीक, अच्छा, नाउ हाउ कैन वी डू दैट? जैसे फॉर एग्जांपल पेंसिल, पेंसिल प्लस डस्टर प्लस तीन चीजें। अदरवाइज इन द कंट्री ओनली 3 थिंग्स आर नॉट प्रोड्यूस्ड, मेनी लैक्स ऑफ थिंग्स आर प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। हियर फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग वी आर कन्फाइनिंग ओनली अप टू 3 थिंग्स। अब जो पेंसिल है, सपोज उसका प्राइस है, पेंसिल का प्राइस है 2 रुपीज पर यूनिट एंड 10 पेंसिल्स हैव बीन मेड इन द कंट्री। Similarly, duster का प्राइस है 5 rupees and 6 dusters have been produced in the country, manufactured in the country. And bottle का प्राइस है 10 rupees and suppose 8 bottles have been produced. Means price into quantity, price per unit into quantity produced. ठीक, एक यूनिट का कितना प्राइस है मल्टीप्लाइड बाय उसकी कितनी यूनिट्स बनाए गए उस चीज के। तो अब उनको मल्टीप्लाई करते हैं, प्राइस इंटू क्वांटिटी, तीनों को ऐड करके मल्टीप्लाई करने के बाद में ये 20 हो गया, 20 प्लस ये हो गया 30, 6 5 are 30 प्लस ये हो गया 10 8 are 80। कितना हो गया टोटल? ऐड कर दे तीनों को, 80 प्लस 20 100 प्लस 30 130। दिस विल बी नोन एज जीडीपी ऑफ द कंट्री। ठीक, दैट मीन्स कि इन द कंट्री इन 1 year goods worth rupees 130 have been manufactured, have been produced। तो अब इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं फॉर्मली? कमिंग टू फॉर्मल लैंग्वेज, हाउ वी कैन डिफाइन इट कि जीडीपी मींस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मींस द मार्केट वैल्यू ऑफ, ये मार्केट वैल्यू है, मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक, सर्विसेज का मैं बाद में बताऊंगी, अभी हम गुड्स का ले रहे हैं एग्जांपल। मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, कितनी है मार्केट वैल्यू? ये सबकी ऐड करते दैट इज 130। All goods and services produced in a country in 1 year, एक साल को लेना है, 5 साल 10 साल नहीं, एक साल में कितना सामान बना उसकी मॉनेटरी वैल्यू, दैट इज कॉल्ड जीडीपी।
तो ग्रोथ जो टारगेट हम कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं, तो ग्रोथ का मतलब है कि देयर शुड बी ए कंसिस्टेंट मीन्स फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ये नहीं कि हैपहैजर्डली एक साल में प्रोडक्शन बढ़ गई, एक साल में जीडीपी बढ़ गया, कभी कम हो गया, जैसे आपके मार्क्स हैं, किसी टेस्ट में ज्यादा आ गए, किसी में फेल हो गए, किसी में कम आए, ऐसा नहीं। देयर शुड बी कंसिस्टेंट इंक्रीज, लगातार बढ़ना चाहिए, कॉन्टिन्यूस इंक्रीज होनी चाहिए। तो किसमें होनी चाहिए? कॉन्टिन्यूस इंक्रीज इन द दिस जीडीपी इन द कंट्री, ये होना चाहिए। ठीक, अच्छा, अब उसके बाद है, अब नाउ यू नो वेरी वेल, किसी भी इकोनॉमी में उसका जो स्ट्रक्चर होता है, इकोनॉमिक्स में हम जब स्ट्रक्चर कहते हैं ना, जैसे हम कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, तो हम कहते हैं हेड, आईज, माउथ, नोज, हैंड्स, फुट, मतलब डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी बोलते हैं। तो ऐसे ही इकोनॉमी के क्या डिफरेंट पार्ट्स हैं? इकोनॉमी के 3 डिफरेंट पार्ट्स होते हैं विच आर नोन एज स्ट्रक्चर। एक होता है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंड इज सेकेंडरी सेक्टर, थर्ड वन इज टर्शरी सेक्टर। ठीक है, तो नाउ दिस ग्रोथ ऑब्जेक्टिव ऑल्सो टेल्स अस कि ये जो जीडीपी बना है, this constitutes, this includes the contribution of primary sector as well as contribution of secondary as well as contribution of tertiary sector। तीनों ही सेक्टर होते हैं, चीजें बनाने के लिए 3 ही सेक्टर हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। तीनों सेक्टर्स में तीनों ने क्या क्या बनाया, उन सबकी मार्केट वैल्यू को ऐड कर ले तो हमें मिल जाता है जीडीपी। तो इसका मतलब अगर जीडीपी को इफ वी वांट टू इंक्रीज, तो दैट मींस वी शुड पे अटेंशन टू द इंक्रीज ऑफ production in primary sector. We should pay attention to the increase of production in secondary sector as well as in tertiary sector. In all the 3 sectors, there should be more production. There should be more this physical assets production of more physical wealth. सब कुछ ज़्यादा होना चाहिए, वो ज़्यादा होगा तभी उनको ऐड करके आपके मार्क्स बढ़ेंगे, आपका जैसे ये जीडीपी बढ़ेगा। और सिंपल टर्म्स में देखो, आपके इकोनॉमिक्स में भी ज्यादा मार्क्स आए, आपके अकाउंट्स में भी आए, आपके फिजिकल में भी आए, सभी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, इफ यू गेट मोर मार्क्स देन व्हाट विल हैपन टू योर एग्रीगेट मार्क्स, टोटल मार्क्स आपके बढ़ेंगे। सभी सब्जेक्ट्स में अगर नंबर बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली टोटल मार्क्स भी बढ़ जाएंगे। तो सेम थिंग इज हियर कि इफ इन द इकोनॉमी प्रोडक्शन प्राइमरी सेक्टर में, सेकेंडरी में और टर्शरी में, तीनों में बढ़ती है, तो दैट विल लीड अस टू इंक्रीज इन जीडीपी ऑल्सो। ठीक, ये हो सकता है। उसके बाद है कि अगर जो जीडीपी है इसमें तो प्रोडक्शन बढ़ रही है, मान लो इसकी वैल्यू कॉन्टिन्यूसली बढ़ रही है। अच्छा, अब आपको एक इंटरेस्टिंग बात आपको 10th में भी आपने पढ़ी है, तो अब क्या होता है कि अगर जीडीपी के साथ साथ इफ आवर पॉपुलेशन आल्सो कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, देन व्हाट विल हैपन टू पर कैपिटा जीडीपी? कैन एनीवन टेल? इफ अलोंग विद दिस ग्रोथ ऑफ जीडीपी, ये तो बढ़ रहा है, बहुत अच्छी बात है, वेरी नाइस, बट उसके साथ अगर कंट्री में नंबर ऑफ पीपल इज आल्सो इंक्रीजिंग साइड बाय साइड, then what can be the possible situation with regard to per capita availability of GDP? Will it increase or decrease? Anyone can tell? GDP बढ़ रहा है, GDP के साथ साथ कंट्री की पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, तो पर कैपिटा GDP क्या होगा, बढ़ेगा या कम होगा? बेटे, नाउ यू नीड टू बी वेरी अलर्ट, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा ध्यान से, यू हैव टू रिमेन एक्टिव। आपने टॉपिक किया हुआ है पर कैपिटा इनकम, तो क्या फॉर्मूला लगाते हैं उसमें? नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। ठीक, तो कोई भी पर कैपिटा निकालना हो, टोटल को डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ आइटम से, अरिथमेटिक मीन जैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर अगर जीडीपी बढ़ रहा है, उसके साथ अगर पॉपुलेशन भी बढ़ेगी, तो इसका मतलब the increased GDP is getting distributed among more and more people. तो per capita availability will become less. But on the other side, if there is a check on population, लोगों का नंबर रिस्ट्रिक्ट हो जाता है या कम हो जाता है या लिमिटेड रहता है और जीडीपी बढ़ता जाता है, तो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ जीडीपी विल बिकम मोर। लोगों को ज्यादा सामान मिलेगा, लोगों को ज्यादा पैसे मिलेंगे, लोगों को ज्यादा चीजें मिलेंगी अगर नंबर कम होगा। बट अगर पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो जीडीपी जितना मर्जी बढ़ता जाए, कोई फायदा नहीं होगा। अब आप इसको ऐसे सोचो, देखो सिंपल टर्म्स में, हमारे कंट्री को, कितना वास्ट कंट्री है, एंड जीडीपी ऑफ अवर कंट्री इज आल्सो ह्यूज जीडीपी एज कंपेयर टू मेनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। बट यहाँ पे स्टिल पॉवर्टी इज देयर, स्टिल पीपल आर अनेबल टू गेट ऑल द थिंग्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन की ग्रोथ भी उतनी ही ज्यादा, 130 करोड़ प्लस लोग हैं यहाँ पे, तो जितना मर्जी जीडीपी बढ़ाते जाओ, हर एक आदमी के हिस्से में आने वाला जो सामान है वो कम ही बढ़ेगा, क्योंकि और भी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। तो इसका मतलब कि अगर इफ वी वांट टू कीप दिस ग्रोथ प्रोसेस इंटैक्ट, if we want to maintain this increase in growth for a longer period of time,
then along with increase in physical production, we have to pay attention to the growth of population also. That also needs to be checked. पॉपुलेशन ग्रोथ भी कम होनी चाहिए, रिस्ट्रिक्टेड होनी चाहिए, तभी लोगों को सारी ये फैसिलिटीज मिलेंगी, लोगों को पैसा मिलेगा, उनको सामान मिलेगा, उनको फैसिलिटीज मिलेंगी अगर नंबर कम होगा तो, ठीक है। तो जीडीपी की जो ग्रोथ है, यहाँ पर यू कैन ऐड वन हेडिंग इन योर बुक ऑल्सो, ग्रोथ के साथ ही यू कैन राइट इंक्रीज इन जीडीपी। समटाइम्स इन डिफरेंट बुक्स ये भी लिखा होता है इंक्रीज इन जीडीपी, दिस इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग, तो बोथ मीन द सेम थिंग, वी कैन कॉल इट ग्रोथ एज वेल एज इंक्रीज इन जीडीपी, ठीक है जी। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। एक और है पॉइंट विच आई लेफ्ट, दैट इज कि अब जो 1990 का टाइम है, 91 में यू रिमेंबर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट, तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स से पहले का जो टाइम है, दैट मीन्स 50 से 90s का, ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड देयर वाज मोर शेयर ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर इन द जीडीपी, मतलब ज्यादा जो अमाउंट ऑफ मनी था, प्रोडक्शन थी, दैट वाज कमिंग फ्रॉम एग्रीकल्चरल सेक्टर। बट आफ्टर 1991, after this liberalization, privatization and globalization, what has happened, the contribution of agricultural sector, primary sector, that has got reduced, and now contribution of services sector, that is tertiary sector, that is increasing day by day. It has increased up to near about 42% या 43% के around it has increased। जबकि आपको याद होगा पहले जो 50 से 90 तक का टाइम है, ड्यूरिंग दैट टाइम एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन था मोर देन 50%। 50% से अगर 100 रुपए इनकम है तो उसमें 50 से ज्यादा जो रुपए हैं वो आ रहे थे फ्रॉम एग्रीकल्चर। बट अब 91 के बाद से वो एग्रीकल्चर का रोल इज गेटिंग कॉन्ट्रैक्टेड, दैट इज गेटिंग श्रिंक्ड, कम हो रहा है, और जो बाकी सेक्टर्स हैं, बाकी कौन से बचे, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, उसमें से भी कंपैरेटिवली टर्शियरी सेक्टर का, सर्विसेज सेक्टर का रोल बढ़ रहा है। सो इफ एनी कंट्री वांट्स टू बी ए वेरी डेवलप्ड कंट्री, rich country, it wants to become an advanced country, then there should be structural shift, there should be sectoral shift of growth। कहाँ से, from primary sector to, पहले आना चाहिए कंट्री को secondary sector पे, secondary sector से tertiary sector। अगर आपको याद हो, I am again I repeat the things because a few things you have already read in your 10th class, 9th class economics also। उसमें एक लेसन में आया था, सेकेंड लेसन था सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, तो उसमें एक कॉन्सेप्ट आया था सेक्टोरल शिफ्ट, कि कोई भी जो कंट्री है, हिस्टोरिकली इट हैज बीन सीन कि पहले कोई कंट्री एग्रीकल्चर में एडवांसमेंट करता है, मतलब थोड़े लोग ज्यादा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन करते हैं, उसको कहा जाता है कि थोड़े लोगों ने काम करके ज्यादा प्रोड्यूस कर दिया, वो एक बढ़िया इंडिकेशन है, पॉजिटिव इंडिकेशन है। देन आफ्टर द ग्रोथ ऑफ प्राइमरी सेक्टर, कंट्री शुड मेक एडवांसमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रीज उसकी डेवलप्ड होनी चाहिए। फिर इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट के बाद कंट्री को आ जाना चाहिए टुवर्ड्स सर्विसेज सेक्टर। वो अगर इस तरह से ये पैटर्न चलता है तो कोई भी कंट्री बहुत जल्दी रिच कंट्री बन सकता है, एडवांस या डेवलप्ड कंट्री बन सकता है, ठीक। सो दिस इज ऑल अबाउट अवर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग, ग्रोथ का, ठीक। नाउ कमिंग टू द सेकंड वन, सेकंड ऑब्जेक्टिव वाज मॉडर्नाइजेशन। नाउ मॉडर्नाइजेशन का मीनिंग क्या है, मॉडर्नाइजेशन Now, modernization का मीनिंग है कि when we got independence, तो at that time ये चीज हमें we should always remember कि जो ब्रिटिशर्स थे, they gave us a very poor economy in inheritance, inherit करते हैं ना, जिसको बोलते हैं विरासत में मिलना। तो अब हमें फ्रीडम मिलने पर विरासत में, इनहेरिटेंस में, what did we get? We got a very poor economy, backward economy, shattered economy, या we can say लेस डेवलप्ड इकोनॉमी, इस तरह का हमें वो हमारे लिए छोड़ के गए थे ब्रिटिशर्स, ठीक। तो एट दैट टाइम देयर वाज लैक ऑफ कैपिटल, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स इन अवर कंट्री, मशीनें ज़्यादा नहीं थी, प्रोडक्शन जो होती थी पुराने तौर तरीकों से ज़्यादा होती थी, एंड ड्यू टू दिस लैक ऑफ मॉडर्न मशीनरी द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज वेरी हाई। जब हम पुराने तरीकों से काम करते हैं तो खर्चा जो होता है बनाने का, लास्ट क्लास में आपने पढ़ा है लेसन, कॉस्ट जो होती है, मनी कॉस्ट जो होती है चीजों को बनाने की, प्रोड्यूस करने की, दैट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग अगर पुरानी मशीनरी है तो देयर वाज लैक ऑफ कैपिटल, बढ़िया मशीनें थी नहीं, ज्यादा लेबर से ही काम होता था तो खर्चा ज्यादा आता था, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज वेरी हाई। मॉडर्न मशीनरी मिसिंग थी, उसका कोई लेना देना था ही उस समय, ठीक है। तो उससे क्या होता था कि जो भी हमारी प्रोडक्शन होती थी दैट वाज वेरी एक्सपेंसिव प्रोडक्शन,
ऑब्वियसली जब अपने पास से ज्यादा खर्चा करते हैं, कॉस्ट होती है हमारी, तो जो हम सामान बेचेंगे वो भी हाई प्राइस के ऊपर ही बेचेंगे. तो व्हेन देयर वाज हाई प्राइस, तो इट वाज नॉट गेटिंग इट वाज नॉट एबल टू compete in the international market. बाकी के जो कंट्रीज थे, they were able to sell their commodities at a lower price, but our country was not able to sell the commodities made here at lower price. क्यों? क्योंकि हमारी अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा थी, तो उसके करके सस्ता बेच ही नहीं सकते थे, खर्चा कहाँ से निकालते, तो वो बेच नहीं पाते थे. मतलब इंटरनेशनल कंपटीशन में इंडिया वाज स्टैंडिंग नो वेयर. जो महंगी चीज होती है, लॉ ऑफ डिमांड यू हैव रेड, कोई भी कंट्री के लोग हों, वेदर इंडियन और एनीवन एल्स इन द वर्ल्ड, दिस इज अ ह्यूमन टेंडेंसी. एवरीबडी इन जनरल फॉलोज द लॉ ऑफ डिमांड. हाई प्राइस होता है तो लोग चीज बाय नहीं करते, कम प्राइस होता है तो सारे लेते हैं. ठीक है, तो अब ऐसे ही इंटरनेशनल मार्केट में देयर वाज वेरी लेस डिमांड फॉर द इंडियन मैन्युफैक्चर्ड गुड्स बिकॉज देयर प्राइसेस वर कंपैरेटिवली हाई. तो इस करके डिमांड नहीं थी. ठीक, तो अब क्या हुआ, तो जो मॉडर्नाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है, इट वाज डिसाइडेड कि कंट्री के अंदर ज्यादा बेटर टेक्नोलॉजी लानी चाहिए, बेटर जो मशीनरी है वो होनी चाहिए, बेटर टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन होनी चाहिए, बेटर वे से सारा कुछ करना चाहिए. अब ये जब व्हेन वी से कि बेटर वे से करना चाहिए, द सेम थिंग इज कॉल्ड इन अदर वर्ड्स मॉडर्नाइजेशन. किसका मॉडर्नाइजेशन? मॉडर्नाइजेशन ऑफ मशीनरी, modernization of techniques of production, modernization of more and more assets with the help of which we can produce more. Everything needed to be modernized and needed to be made more and more advanced. ज़्यादा लेटेस्ट होगा तो ही प्रोडक्शन हो सकती है, बढ़िया हो सकती है. ठीक है, अच्छा, दिस वाज रिलेटेड टू टेक्निकल साइड. मशीनें जो है ये एक नॉन लिविंग एक टेक्निकल चीज़ है. क्या सिर्फ मशीनों के मॉडर्न होने से, एडवांस्ड होने से कंट्री मॉडर्न हो सकता है? इन जनरल अगर हम ध्यान से सोचें तो आंसर इज नो. मशीनरी के, सामान के, फिजिकल एसेट्स के एडवांस्ड मॉडर्न होने के साथ ही साथ द आउटलुक ऑफ द पीपल, द मेंटेलिटी ऑफ द पीपल, द थिंकिंग प्रोसेस ऑफ द पीपल, दैट आल्सो नीड्स टू बी मॉडर्नाइज्ड. लोगों की सोच भी मॉडर्न बननी चाहिए, एडवांस्ड बननी चाहिए. दिस इज आल्सो द नेसेसिटी या नीड ऑफ द टाइम. एट दैट टाइम आल्सो, इवन नाउ आल्सो, एवरी टाइम, दिस इज ए जनरल कॉन्सेप्ट. ठीक है, तो इट वाज थॉट बाय अवर प्लानिंग अथॉरिटी, पीपल ऑफ अवर प्लानिंग कमीशन या अथॉरिटीज ऑफ द गवर्नमेंट, कि भाई जो लोग हैं वो भी मॉडर्न बने, लोगों के साथ साथ हमारी मशीन्स भी मॉडर्न बने, सो दैट इन अवर फैक्ट्रीज वी कुड बी एबल टू प्रोड्यूस मोर. ठीक, फॉर दैट एफर्ट्स वर मेड. ठीक, तो उसी को कह दिया जाता है मॉडर्नाइजेशन. तो अब जो मॉडर्नाइजेशन के करके फिर क्या होता है, वी कैन से progressive attitude of the people comes into the forefront. प्रोग्रेसिव एटीट्यूड कि हमने कैसे अपने लाइफ को एक बढ़िया तरीके से आगे लेके जाना है. हाउ कैन वी कंट्रीब्यूट मोर टू द सोसाइटी, हाउ कैन वी कंट्रीब्यूट मोर टू द इकोनॉमी, हाउ कैन वी कंट्रीब्यूट इकोनॉमिकली मोर टू द सोसाइटी. कंट्री में हम क्या करें कि हमारी इनकम बढ़े. जब लोगों की इनकम बढ़ती है तो ऑब्वियसली सब लोगों की इनकम को मिला के ही कंट्री की इनकम बनती है, तो कंट्री की भी डेवलपमेंट होती है. सो मॉडर्नाइजेशन का ये टारगेट ऑफ प्लानिंग रखा गया कि मशीनों की भी एडवांसमेंट की जाए, मशीनों के साथ लोगों की जो कल्चरल या सोशल आउटलुक है, थिंकिंग प्रोसेस है, दैट शुड आल्सो बी मॉडर्नाइज्ड. और वो हो सकता है बाय गेटिंग या बाय प्रोवाइडिंग मोर एजुकेशन. लोग जितने पढ़े लिखे होंगे उतना ही उनकी आउटलुक दैट गेट्स वाइडन्ड, दैट गेट्स दैट मेंटल होराइजन ऑफ द पीपल दैट गेट्स वाइडन्ड. लोगों की सोच का जो दायरा होता है वो बढ़ता है अगर हम पढ़े लिखे होते हैं. ये सारा कुछ ओवरऑल मतलब सोशल साइड एज वेल एज इकोनॉमिक साइड वाज केप्ट इन माइंड कि भी इससे मॉडर्नाइजेशन को भी मोर अटेंशन वाज गिवन. नॉट ओनली एट दैट टाइम, इवन इन एवरी प्लान ये रखा गया कि भाई इस तरह से हमें काम करना है. ठीक, सो अगेन इट वाज ए परमानेंट ऑब्जेक्टिव. नेक्स्ट इज सेल्फ रिलायंस, और इन सम बुक्स इट इज आल्सो नोन एज सेल्फ सफिशिएंसी. self sufficiency. ठीक है, I think now time is also going to be over almost. Okay, so it will take time to for the explanation. So we will do this objective of self reliance tomorrow. So today you have to revise up to second objective of planning. 2 we have done, one was growth and second one was modernization. Okay, so this work is to be done today. So with this